Hi guys, welcome back. So let's start with the topic once again where we left yesterday, that is of power sharing. So let us see till yesterday what did we see, what did we study? We studied about the word power sharing. We studied about the various forms of power sharing. For example, in India, we normally do a horizontal kind of power sharing. That is, India is being divided into various organs, and every organ has got equal responsibility of doing their duties. That means the power is being shared horizontally and equally. That is legislature, judiciary, and executive. Uh, but in US, the same kind of conditions actually are not prevalent. For example, they believe into a power sharing which is vertical. Okay, so that is kind of a federal way of working. So that is USA. So remember this part that USA believes into not into the horizontal power sharing. They believe in the vertical power sharing. We'll talk more about that. But first of all, पावर शेयरिंग के अंदर कल हम लोगों ने कल कुछ फॉर्म और कल कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हुए थे. फॉर एग्जांपल द वर्ड मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन वी टॉक्ड अबाउट द वर्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, prudence, community. Let's talk about the word checks and balances. What do you mean by checks and balances? No, it is not the financial term as in checks and balances, but this is a kind of government in which one organ keeps on checking the other organ. Say suppose kar lo there is this judiciary. So I'm just giving an example. So the judiciary is going to check, say, the executive and the legislature function continuously whether they are performing their roles nicely and in a proper fashion or not. So that kind of government or that kind of way of government in which one organ or one function keeps on checking the other form continuously will be known as checks and balances. Okay. Now, then comes the word reserved constituencies. What do you mean by the word reserved constituencies? Reserved constituencies means that there are certain constituencies or certain seats which are reserved for a particular community, category, region, people, and so on and so forth. That is known as reserved constituency. So suppose कर लो assembly के अंदर अपने इंडिया के अंदर ही there are certain seats which are reserved for a particular class or particular community. So that is known as reserved constituencies. Then comes the word coalition form of government. What do you mean by coalition form of government? In simple way, जोड़ तोड़ की सरकार. जब भी कभी कोई भी एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली अपना मैंडेट या अपनी मेजॉरिटी नहीं ला पाती इलेक्शंस के अंदर, देन वो क्या करती है, देन वो दूसरों के साथ में हाथ ज्वाइन करती है जिनकी फ्रीक्वेंसीज काफ़ी सेम है. से फॉर एग्जाम्पल बिफोर दिस बीजेपी गवर्नमेंट अराउंड 7 or 7.5 years बिफोर, उसके पहले जितने भी गवर्नमेंट्स थे सारे के सारे गवर्नमेंट्स कैसे थे? कोalition गवर्नमेंट, जोड़ तोड़ के सरकार. एज एन कांग्रेस met up with certain other parties and उन parties ने बोला हम आपको support करेंगे and they were later on known as allies. Okay, so that is coalition government. अभी भी जो government है, though it is a absolute majority government which is the BJP government, yet उनके कुछ allies हैं जो उनके साथ में हैं. So that is known as the NDA. So ध्यान रखना that अभी जो गवर्नमेंट है वो कहने के लिए तो ऑफकोर्स बीजेपी की गवर्नमेंट है ही, बट दे ऑलवेज कॉल इट एज एनडीए. एनडीए इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. सो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब क्या हो गया कि उनके पास में मेजोरिटी तो आ चुकी है बीजेपी के पास में, विच इज भारतीय जनता पार्टी, बट फिर भी कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को. सो दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, उससे क्या हो जाएगा, पावर और बढ़ जाती है आपकी. सो दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट. ओके, बट इस कंडीशन के अंदर हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट प्रेजेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कोalition गवर्नमेंट है, बिकॉज यदि उनके सपोर्ट सिस्टम ने या उनके सपोर्टर्स ने यदि अपने आप को विड्रॉ भी कर लिया तो भी बीजेपी के पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है. सो नो इश्यूज फॉर दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू डिफरेंट केसेस. नाउ पहला क्वेश्चन आता है, सर इस पूरे चैप्टर में बार बार हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे इंडिया के बारे में बात करना चाहिए? वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट दीज टू कंट्रीज हैव टू ऑफर. और आखिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया भी काइंड ऑफ वैसी कंट्री है जिसमें हजारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ह्यूज डाइवर्सिटी है पीपल की, एंड दैट्स द रीजन व्हाई. सो लेट्स सी.
So there are these particular two countries, one is in Europe and another is in Asia. So the European country जिसके बारे में हम केस स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी मतलब हम केवल इसके बारे में पढ़ेंगे, will be known as Belgium. So Belgium is nothing else but is a European country जिसकी population approximately 1 करोड़ है, plus minus ऊपर या नीचे. Okay. But why are we talking about such a small country? Because India की population तो 130 करोड़ है. As I talked about that this particular small country yet had huge diverse group. इनमें एक तरह के लोग नहीं हैं, मेजॉरिटी वाले लोग नहीं हैं, इनके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए इनका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. What do you mean by ethnic complex? That means उनका जो रेस है, उनका जो कास्ट है, कलर है, क्रीड है, वो काफ़ी डिफरेंट है, and that's the reason why. Now, ethnic composition is complex, as I told you. Let's see why it is complex. 59% lives in the Flemish region, which technically comes in the northern part. So 59% lives in the Flemish region, and they speak which language? That is Dutch. Very important data. 59% lives in the Flemish region, which is the northern part of Belgium. Okay, and they speak what? They speak Dutch. On the other hand, 40% live in the Wallonia region, which is due south, and they speak what? French. So एक ही कंट्री के अंदर 59% जो लोग बाग हैं वो एक एरिया में रहते हैं, which is known as Flemish region, and वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? Dutch. While on the other hand जो 40% लोग हैं उसी कंट्री के अंदर वो रहते हैं due south, and they live in Wallonia and they speak what? French. बेल्जियम के अंदर डच एंड फ्रेंच. ओके, नाउ 59 and 40 comes out as 99. So 1% जो है पॉपुलेशन दैट स्पीक व्हाट? जर्मन. मतलब करीबन लाख लोगों के आसपास लोग जर्मन भी बोलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. देन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज व्हाट? दैट इज ब्रुसेल्स. ओके, ब्रुसेल्स. नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट कैपिटल सिटी? बिकॉज किसी भी कंट्री की मेन पहचान उसकी कैपिटल सिटी से होती है. It can be a financial capital or it can be a elected capital. For example, in India, the financial capital is technically Mumbai because 1/3 of the GDP or 1/3 of the income tax only is being contributed from one particular place, and there is another which is Delhi or New Delhi, which is the capital of India. So capital city is Brussels, and Brussels के अंदर भी see 80% speak French while 20% speak what? Dutch. देखते हैं आगे. French speaking is the minority. Common sense वो तो यहीं से ही दिखाई दे रहा है that यहाँ पर जो French speaking people है which are only 40 are actually minority. अब आप बोलोगे सर लेकिन यहाँ तो 80% है. That's only one capital city. Okay, तो क्या क्या कैपिटल सिटी से कंट्री नहीं बनते, कंट्री में और भी सिटीज होते हैं. So French speaking people are technically the minority. बट फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी होने के बावजूद भी दे आर वेरी रिच एंड पावरफुल. मतलब उनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, नॉट इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है ऑल अक्रॉस द पीपल. ओके, सो एंड प्लस दे आर वेरी रिच ऑल्सो. नाउ प्रॉब्लम ये होता है जब भी कभी रिच और पुअर कैटेगरी बनती है तो पुअर ऑलवेज थिंक दैट रिच लोग ज़्यादा ग्रीडी हैं, ज़्यादा डिसऑनेस्ट हैं, उन्होंने हमारे को हमारा ड्यू शेयर नहीं दिया, which in some time it can be true but in sometimes it can be false also. How it is true? Because जो रिच लोग होते हैं उनके अंदर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं that they are dominant in nature, वो रूल करना चाहते हैं. So that might be true. Okay, but ज़रूरी नहीं है. अब आप इतनी सोचोगे कि रिच एंड पुअर एक्चुअली में बने क्यों, इसलिए भी हो सकता है बिकॉज पुअर माइट नॉट वांट टू वर्क दैट मच. वो उतना दिमाग और उतनी अकल लगाना ही नहीं चाहते, वो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, या वो उस ढंग से काम ही नहीं करना चाहते हैं. दैट माइट बी द रीजन दैट दे आर पुअर. आई एम नॉट सेइंग दैट इज द रीजन, आई एम सेइंग दैट माइट बी द रीजन. सो दोनों केसेस हो सकते हैं. नाउ the Dutch speaking community actually became angry. Why the Dutch speaking became angry? Because if you can see, the Dutch technically is the majority and yet they are poor. Why? Because उनके पास में जो एजुकेशन सिस्टम आया था वो उनको काफ़ी लेट मिला था. किनको? डच स्पीकिंग को. पर फ्रेंच को, बिकॉज फ्रेंच की तो काफ़ी सारी कॉलोनीज बनी हुई थी ऑलरेडी, तो इनके पास में एजुकेशन एंड वेल एटिकेट्स एंड वेल बिहेवियर इनके पास काफ़ी पहले आ चुका था.
So Dutch speaking community got very angry and this led to huge amount of conflicts in the year 1950s to 1960s. So इन लोगों के बीच में कंटिन्यूसली टेंशन चल रहा था. अब आप बोलोगे सर लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया इससे हमारी इंडिया का क्या कनेक्शन है. अगेन ढंग से देखो एंड शायद कनेक्शन मिल जाए. व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पर भी दो कम्युनिटीज हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बट हम किन दो कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं जो हमेशा फाइट करती रहती हैं. And you can understand this, okay? So that is the reason why we are studying this chapter to understand, because आप जैसे लोग, see हम लोगों का टाइम कहने के हिसाब से हो चुका. आप बोलोगे सर आपका भी, in a way हाँ. Why? Because we have already completed our education. हम लोग उस सिस्टम से निकल करके आ चुके हैं. हम लोग वही पुरानी वाली बातें continuously बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, so on and so forth. Now you guys are the new generation altogether, the generation X, right? Or the generation Y, or the generation Z. So you guys have got altogether a different way of doing things and a different way of thinking how to do things. So imagine करो कल में से आप में से कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई लीडर्स बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर्स बनेंगे. आप में से जब ये लोग जाकर के इंडिया को जब रूल करेंगे, so which kind of India do you want? That is your choice. So these case studies will give you an idea that what happens when you try to do this or when you try to do that. Okay, now so tension started prevailing between these two communities because एक majority में थी yet poor थी, but दूसरी minority में थी yet powerful थी. Now let's see, this is one of the case. Now let us see another story of Sri Lanka. Now what happened in Sri Lanka? Now Sri Lanka is of course a small country that is to the south or the southernmost part of India. साउथ के अंदर है. ओके, आपको मालूम होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका वी कीप ऑन प्लेइंग अ लॉट ऑफ मैचेस. ओके, सो स्टोरी ऑफ श्रीलंका. सो इट इज साउथ ऑफ इंडिया विच इज द लोकेशन. इट हैज गॉट अ डाइवर्स पॉपुलेशन. वहाँ पर भी यदि आपको लग रहा है कि सारे के सारे तमिल स्पीकिंग पीपल हैं, नॉट एग्जैक्टली ट्रू. सो डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़. सो ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है वो डबल है बेल्जियम की. बट यदि मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो आई थिंक केवल मुंबई के अंदर इतनी पॉपुलेशन है. ओके, so if you speak about, बल्कि मुंबई से भी कम है, मुंबई में और भी ज़्यादा है. So technically if you see the population of Sri Lanka, which is a country, is almost equal to a highly densely populated city right now, which is right now in news for not so good reasons. Now the major groups, now तमिल्स के अंदर भी या श्रीलंका के अंदर भी बहुत सारे मेजर ग्रुप्स हैं. मेजर ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स, जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोलते हैं सिन्हाला. सो दीज आर दोज द मेजर ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स विच ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 74%. देन सिन्हाला स्पीकर्स के अलावा और भी मेजर ग्रुप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर तमिल स्पीकर्स विच आर 18%, एंड देयर आर अदर्स, एंड देयर कैन बी क्रिश्चियंस, देयर कैन बी इंग्लिश स्पीकिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं. सो दीज आर बाय द वे द 74 and 18%. सो विच आर टू मेन प्रोमिनेंट ग्रुप्स, सिन्हालास एंड द तमिल्स. ओके, सो जो सिन्हाला बोलते हैं दे आर नोन एज सिन्हाला स्पीकर्स, एंड जो तमिल बोलते हैं दे आर नोन एज तमिल स्पीकर्स. नाउ तमिल्स के अंदर भी फर्दर मोर कैटेगरी है. सो तमिल्स के अंदर देर आर 2 मेजर ग्रुप्स. वन इज द श्रीलंकन तमिल्स, जो श्रीलंका के नेटिव लोग हैं, जो वहीं के लोकलाइट्स हैं. ओके, जो वहीं पर ही पैदा हुए हैं. ऑन द अदर हैंड उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 13%, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी. ऑन द अदर हैंड तमिल्स के अंदर ही इंडियन तमिल्स भी हैं. अब आप बोलोगे सर ये इंडियन तमिल्स कैसे घुस गए वहाँ पर? रिमेंबर प्लांटेशन वर्कर्स, कॉलोनीज, एंड दैट्स द रीजन व्हाई. सो कुछ प्लांटेशन वर्कर्स उस टाइम पर श्रीलंका में चले गए थे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे रिसाइडेड ओवर देयर, एंड नाउ दे contribute to almost 5% ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन. सो इसका मतलब है ये जो सो कॉल्ड 18% है, तो 18% का मतलब 2 करोड़ का ऑलमोस्ट कितना हो गया? इट वुड बी अराउंड 3,60,000 something like that. And in 3,60,000 के अंदर भी करीबन 5% people are this which are quite in thousands, right? So we cannot say that we can eliminate that because उतनी भी तो community है. So इसका मतलब है श्रीलंका में कौन कौन से हुए? 2 major groups which is Sinhala speakers, Sinhala language जो बोलते हैं, and the Tamil speakers. देन सिन्हाला के अंदर वो तो ऑफकोर्स मेजॉरिटी हो गए. देन तमिल्स के अंदर भी फर्दर मोर 2 कैटेगरीज हैं. वन इज इंडियन तमिल्स जो प्लांटेशन वर्किंग की ड्यूरेशन में वहाँ पर गए थे, एंड अदर इज श्रीलंकन तमिल्स. ओके,
ना आप बोलोगे इंडियन तमिल्स है 5% तो इनको तो ये लोग निकाल के बाहर फेंक देंगे, एग्जैक्टली यही सोचा वहां की गवर्नमेंट ने, बट दैट लेड टू ह्यूज प्रॉब्लम. नाउ लेट अस सी व्हाई. Sinhala speaking जो people है वो majority Buddhists हैं. Majority that does not mean that they are 100% Buddhist, but majority are Buddhists जो कि गौतम बुद्धा के अंदर बिलीव करते हैं. My name is Gautam but not Buddha. बुद्धू बोल सकते हो बट बुद्धा नहीं. खैर, so Sinhala speaking are the Buddhist speaking people. तमिल्स के अंदर भी दो तरह के रिलीजन को मेनली मानने वाले हैं. नाउ दैट डज नॉट मीन्स कि सारे के सारे इसी कैटेगरी के हैं. तो वन विल बी हिंदूज एंड अनदर विल बी मुस्लिम्स. नाउ हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ये दो बाय द वे कैटेगरीज हैं आपके पास में. इनमें से भी कुछ 7% है जो कि क्रिश्चियंस हैं विच आर तमिल्स एंड सनाला ऑल्सो. सो दोनों के अंदर मर्जिंग एंड मिक्सिंग भी है कि 7% वो वाले हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं, जो तमिल वाले भी हैं और सनाला वाले स्पीकर्स भी हैं. सर तो ये सारी की सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, नॉनसेंस टाइप. Now understand what happened in Sri Lanka. So I'll just give you a brief view and then we'll continue with this topic tomorrow once again, and tomorrow this topic would complete. श्रीलंका ने सोचा कि हमारी तो मेजॉरिटी है, so they said Sinhala would be the official language. बट जब भी कभी इतना डाइवर्स ग्रुप होता है तो आप केवल ये नहीं बोल सकते कि हमारा should be things should be followed. It is not good. अब उसके वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया वहां पर. Civil war is pretty ruthless and pretty bad. It took a very bad shape. बहुत सारे लोगों की जाने गई. आज भी काफ़ी वायलेंट स्ट्रीक रहता है श्रीलंका के अंदर काफ़ी बार. ओके, सो ये होना चालू हो गया. Why? Because the government over there thought that we would form a majoritarian or a tyranny kind of government. हमने सोच लिया कि बस हमारे ही ग्रुप्स को लीडर्स की पोजीशन मिलेगी एंड इन सब पर हम रूल करेंगे. बट देन केम द मेजर प्रॉब्लम बिकॉज तमिल्स देन थॉट दैट हम लोग तो एलिनेट हो जाएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय एलिनेट? हमें तो लोग बाग अलग से ट्रीट कर रहे हैं, हमारी तो माइनॉरिटी है. सो दे सेड दैट दिस इज नॉट अलाउड. और उन लोगों ने इस तरह के रिवोल्ट ग्रुप्स बनाना चालू कर दिए एंड इन रिवोल्ट ग्रुप्स ने इनके अगेंस्ट में वॉर कर दिया. that we are not going to agree and mass murders हुए, mass by the way ruthless repression हुआ and so on and so forth. It was very very brutal history of Sri Lanka. आपको लगता है कि श्रीलंका is only known for the part of the Ravan and the Ram जी की story? It's not exactly true. यदि आप गूगल पे जाकर केवल श्रीलंका टाइप करो in the history of Sri Lanka in the last 30 and 40 and 50 years, you will see only blood and blood over there. Okay, so that is what happens when only one community starts thinking that हम बड़े हैं और बाकी छोटे हैं. Now let's come back to the same point what we started with this topic while we were starting this topic, and that was why are we discussing Sri Lanka and Belgium once again. Think about it. We are thinking about or we are reading about these particular two stories because ये while success story है, ये completely flopped story है. बड़ी में फ्लॉप्ड स्टोरी बिकॉज यहाँ पर किसी ने कभी किसी की बात सुनी ही नहीं, माइनॉरिटी को कभी ट्रीट ही नहीं किया गया. यहाँ पर 4-5 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया. ओनली फॉर होम, ओनली फॉर डच, फ्रेंच एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ लोगों के लिए. यहाँ पर नहीं, हमें आपकी बात नहीं सुननी है. नाउ थिंक अबाउट इट. सपोज कर लो आई एम अ हिंदू. लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. ओके, सो लेट अस से सपोज आई एम अ हिंदू. What do you mean I am a Hindu? I am a Hindu. But let us say suppose that I am a Hindu और मैं कोई ex आदमी हूँ और मेरी वाली जो कम्युनिटी है मेजॉरिटी के अंदर है. Let's say suppose this particular guy's community is Y, which is suppose Muslims or Christians or somebody else. Now I'll say I am majority. इंडिया का नाम ही हिंदुस्तान है, तो that means केवल हिंदूज के लिए स्थान होना चाहिए, बाकी लोगों को बाहर भगाओ. Think about it again. What do you think is going to happen? ये मैं सोच रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, बट क्या ऐसा हो पाएगा? बिकॉज जो लोग यहाँ पर लास्ट अराउंड 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स से रह रहे हैं, अब उन्हें घर से जब बाहर निकालोगे, उनके बीवी को, बच्चों को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, व्हाट डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गो आउट सो इजीली? नो, दिस टेक्निकली गोइंग टू बी अ सिविल वॉर. एंड डेमोक्रेसी के अंदर सिविल वॉर की कोई जगह नहीं होती बिकॉज आप सबको अकोमोडेट करते हो. तो बेल्जियम ने इतनी छोटी पॉपुलेशन के अंदर भी लोगों को अकोमोडेट करना कैसे चालू किया, ये हम कल देखेंगे. वाइल श्रीलंका ने ऑलमोस्ट डबल द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम के बाद में भी अकोमोडेट कैसे नहीं किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो भी हम कल देखेंगे.
Okay, so with this part, I'm gonna stop my lecture. Come bol bachan over here. See you guys. Enjoy. Take care. And the sheets will come up. Bye bye.